to speak to you in the most humble way. It's a long, very long journey. The year was 1981 and the month was February. I was during that time. What had happened was there is a village in Tamil Nadu by the name of Meenakshipuram had converted to Islam for some reason, very silly reason according to me. I was a very young boy at that time. They were not allowed the village, the temple well to be used. They were not allowed to have darshanams. So I was sitting in the medical college cafeteria, and I was very lively then at that time. That was before my marriage. So very lively, I was having friends. People said, "What has happened to you, Vivek? You are always cheerful." So I said, we have a great religion, but how is it that in our religion, people like these are not allowed in a temple? I could not believe it because I was very young. I think I was 17 years at that time. Then started this journey of knowing Hinduism. Is there any problem in Hinduism, or why is it that our own people are not allowed to visit temples, which should be a basic right of any human being to go to his own place of worship? So at that time, my name is Vivek. I was named Vivek by one of the saints of Ramakrishna Mission called Swami Ranganath Nandaji. And he was perchance in charge of the place where I was doing my medicine, and that was Hyderabad. And I used to go to his Gita classes. He was a very well-known scholar. He had written almost about 60 books. So I used to ask him the same thing. What has happened? Why is Hindus are not allowed to temples? What is the problem in Hinduism? And he gave me some answers, but I was still not convinced. Then I met another sage by the name of Chinmayananda. He was very famous for his Gita lectures. I met him in Bharatiya Vidya Bhavan in Delhi with my father, and asked him the same questions as a school child. I mustered courage to ask him the same questions about Hinduism. Why are we divided? Why don't they unite Hindus? Because they are very famous. They could meet each other and do something. That is what a schoolboy or a young graduate thinks about. And they say, no, everything will be fine, don't worry. But I was not convinced. I was saying there's something wrong in us. And then what happened in early 80s, Ramakrishna Mission Wale went to the court and declared that we are not Hindus. So I was shocked. Remember, Vivekananda at one stage said he is a proud Hindu. And they have gone to a court in Calcutta to declare themselves non-Hindus. So again I went to Swami Ranganath Nandaji. I said, your organization is not up to the standard what Vivekananda wanted them to be. He said, what has happened? I said, आप लोग कोर्ट में गए हैं, कोर्ट में डिक्लेयर किया हुआ है कि हम हिंदू नहीं हैं. तो बोलते नहीं, वो हमारे लॉयर ने हमको बोला कुछ टैक्स बचेगा. मैं बोलता टैक्स के लिए तो आप ऐसा तो नहीं कर सकते हो कि यू कैन स्टार्ट अ मूवमेंट but not go to a court and declare yourself to be non-Hindus. And I was, as a young boy, उस ज़माने में, you always get shocked by these kind of things. There was no social media to get you support and other things. Then move forward. Then I belong to Kashmir. तो वहाँ पे भी हमारे साथ as a minority we were there as Hindus. We were kicked out, and nobody did anything. There was no response from rest of India about why are we being kicked and all that. So then I started reading about Vivekananda. So Vivekananda in his time also भी ऐसे ही परेशानियों से गुजर रहे थे. उनकी कैलकाटा में भी काफ़ी कन्वर्सेशन या कुछ हो रहे थे. वो परेशान थे कि हिंदूज आर नॉट यूनाइटेड. तो जब वो अमेरिका गए थे तो वहाँ पे भी वो बड़ी मुश्किल से गए थे कि उनको पहले अलाउ भी नहीं किया था बोलना, बिकॉज ही डिड नॉट बिलोंग टू एनी संस्था. उनकी संस्था नहीं थी तो उनको अलाउ भी नहीं किया था बोलना. तो ही वेंट देयर. तो वहाँ से वो कुछ सीख के आए. उन्होंने लिखा कि जब तक हिंदूज के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन ना हो कुछ नहीं हो सकता है. वी कैन नॉट गेट यूनाइटेड टिल वी डोंट हैव एन ऑर्गेनाइजेशन. So he came back, and with him came a sister Nivedita. वो एक आयरिश लेडी थी, उनका नाम मार्गरेट नोबेल था. उनको लेके आए तो उन्होंने बोला कि देखो मैं कुछ भी अचीव नहीं कर पाऊंगा टिल आई डोंट हैव एन ऑर्गेनाइजेशन. उसने बोला दुनिया में मुझे 6 हिंदू चाहिए सिर्फ ज्वाइन करने के लिए जो मैं एक ऑर्गेनाइजेशन बना पाऊँ. तो बस बाजार वहाँ कैलकाटा में एक जगह है, वहाँ पे 6 हिंदुओं के साथ बैठे. उसमें सिस्टर निवेदिता भी थी. तो उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई 1897 में 1 मई को. उसका नाम उन्होंने रामकृष्ण मिशन रखा. तो उसमें पूरे रूल्स एंड रेगुलेशन जो उन्होंने वेस्ट में सीखे थे. उन्हें ऐसा क्यों सीखा था? उन्होंने बोला कि जो वेस्ट में गरीब हैं उनको भी खाना मिलता है,
उन्होंने चर्च से सीखा था। उनकी एक फेमस बुक, उनके पास 2 फेवरेट बुक होती थी, भगवद गीता और इमिटेशन ऑफ क्राइस्ट, वो उनकी 2 फेवरेट बुक्स थी। तो उन्होंने अमेरिका में जाके सीखा कि जो भी अमीर चर्च वाले हैं वो चर्च में जाके अपना कपड़ा डोनेट करते हैं, रुपये डोनेट करते हैं, डॉलर्स डोनेट करते हैं, खाना पीना डोनेट करते हैं, तो गरीब लोगों की उसमें सेवा हो जाती है। तो वो उन्होंने सीखा, बोला ये सेवा भाव हमको बेलूर मठ में भी जो उन्होंने बनाना था लाना चाहिए। उसी से हम अपने गरीब जो है, उन्होंने ये भी कहा था, अपनी फेमस सेइंग थी, यू कैन नॉट टीच रिलीजन ऑन एन एम्प्टी स्टोमक। तो वो उन्होंने बोला भैया मैं ये खाली पेट पे रिलीजन नहीं चल सकता है, वी हैव टू डू समथिंग। तो फिर उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन बनाई और ऑर्गेनाइजेशन का नाम जो उन्होंने दिया और उसने वो काम किया। लेकिन क्या हुआ सर, वो ही वॉज ओनली 39 ईयर्स ऑफ एज एंड ही पास्ड अवे मतलब एक्सीडेंटल डेथ थी कि उनका ही वॉज नॉट सिक एंड सुबह शाम खाना भी अच्छा खाया था, रात के टाइम पे समाधि में चले गए एंड ही पास्ड अवे इन 39। तो उसके बाद वो जो उनका मूवमेंट है वो वहीं कलकत्ता, वेस्ट बंगाल और कहीं कहीं फैल गई और अमेरिका में जो उन्होंने खोले थे उनके केंद्र। तो उसके मरने पे, उनके देहांत पे तिलक साहब बहुत दुखी थे, बोलते हैं सबसे बड़ा हिंदू चला गया। जो सेकंड शंकराचार्य उनको मानते थे, वो शंकराचार्य जो आदि थे उन्होंने काफ़ी हिंदूज को मिलाया था, तो ये उन्होंने सेकंड शंकराचार्य हमारे जो गुजर गए। तो फिर मैंने जब मैं वेस्ट में गया 20-25 साल पहले, इसका फोन है मेरा नहीं, तो ही वेंट टू द वेस्ट, मैं भी वेस्ट चला गया। मैंने भी सीखा वहाँ पे, जो लोकल चर्च थे मैं वहाँ चर्च जाता था, तो चर्च क्या करते थे वहाँ पे, जितने भी गरीब और अमीर होते हैं वो संडे को जाते हैं, वो डोनेट करते थे खाना पीना कपड़े। और एक और चीज़ मैं वहाँ सीखी, जैसे आप बोलते हैं ना चर्च कैसे रिच हो जाता है, वहाँ के पैसे यहाँ क्यों आते हैं, कहीं और क्यों जाते हैं। जो वहाँ के लोकल रहने वाले हैं जब वो मर जाते हैं, दे एक्सपायर, जब अपना डोनेट करते हैं प्रॉपर्टी टू द चर्च, तो छोटे से छोटा चर्च या मंदिर जैसा जो चर्च होता है उनके पास भी लाखों करोड़ों पाउंड्स आ जाते हैं। तो वो हेल्प करते हैं गरीबों की। वो ये सिलसिला चलता रहा वर्ल्ड वॉर 1 तक। उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट ने ये ले लिया कि हम चलाएंगे चर्च का सिस्टम, वेलफेयर स्टेट बन गया। तो हिंदुइज्म इज अ ग्रेट रिलीजन, बट थिंग इज दैट वी डोंट, जो विवेकानंद ने सोचा था एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होना चाहिए, वो नहीं है। उस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में क्या होता है, यू कैन रीच द पुअर पीपल। जो पुअर पीपल को आप रीच करोगे तो वो किसी अपना धर्म नहीं तब्दील करेंगे, वो खाना पीना मिलेगा। जैसे जैसे यहाँ पे होता है, वी हैव टू ऑल हिंदूज ऑर्गेनाइजेशन हो, कॉमन हिंदू हो, दे हैव टू कम अंडर एसोसिएशन जहाँ पे हम गरीब हिंदुओं की बात करें। और इट इज़ नॉट ओनली स्वामीज, उस संस्था में साइंटिस्ट होने चाहिए, डिफेंस एनालिस्ट होने चाहिए, नॉर्मल मैनेजमेंट स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो सब एक बिल्डिंग में काम करके हिंदुज़म को आगे लें। हिंदुज़म का भी ये प्रॉब्लम है, जैसे वर्ल्ड में आप वेस्ट में जाइए तो सब कुछ खाना पीना मिल जाता है, इवन होमलेस को खाना मिल जाता है, लेकिन इज्जत नहीं मिलती है। हमारा जैसे हिंदुइज्म में एक ऑफिस भी नहीं है, एक हेडक्वार्टर भी नहीं है, जैसे जहाँ पे हमें गरीब अमीर ये सब मिलके कुछ काम कर सके गरीबों के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे गुरु गोविंद सिंह ने सिखिज्म में एक रूल्स रेगुलेशन लाए, खाना पीना कैसे करना चाहिए, अकाल तख्त आ गई। वैसे ही हिंदुइज्म में एक मैकेनिज्म आना चाहिए जिससे हम अपने गरीबों की सेवा कर सकें। जब तक हम गरीबों की सेवा नहीं कर पाएंगे तब तक हिंदुइज्म का विल पास थ्रू लॉट ऑफ डिफिकल्टीज। आजकल हम क्या करते हैं, सोशल मीडिया पे अंग्रेजी बोलते हैं और बोलते हैं ये करना चाहिए वो करना चाहिए, लेकिन हमारे जो गरीब हैं वो अंग्रेजी नहीं बोलते हैं और उनसे हम पिछड़े हुए हैं। हमको एक संस्था ऐसी बनानी पड़ेगी, उसमें 3 ही चीज़ें चलेंगी। अगर 3 चीज़ें चलेंगी हम सब हिंदूज को यूनाइट कर सकते हैं। पैशन दिल से होना चाहिए, कंपैशन गरीबों के लिए होना चाहिए और एक टीम बिल्डिंग एबिलिटी होनी चाहिए। और हिंदुइज्म का सबसे बड़ा दुश्मन, जो विवेकानंद ने भी कहा है, उसके बड़े बड़े पैराग्राफ लिखे हैं, सबसे बड़ा दुश्मन हिंदुइज्म का कोई बाहर का आदमी नहीं है, वो ईगो है। ईगो इज द बिगेस्ट एनिमी ऑफ हिंदुइज्म। विवेकानंद ने बहुत जगह बोला है, उनकी आप कंप्लीट वर्क्स में पूछोगे। क्योंकि अगर हम अपने ईगो छोड़ देंगे, एक संस्था जैसी बनाएंगे जहाँ प्यार मोहब्बत से सब लोग काम कर सकें, इवन हिंदू के जो एलाइड रिलीजन्स हैं, बुद्धिस्ट हो, जैनिज्म हो, सिखिज्म हो, सब लोग इकट्ठे काम करके एक रूप दे सके एक रिलीजन को, तभी हिंदुइज्म की कुछ बड़ा हो सकता है। क्योंकि अभी हमारे जो गरीब लोग हैं वो हम उनसे पिछड़े हुए हैं। यही मैंने जो मेरा एक सपना है 40 साल का कि ये संस्था बनाने का, सनातन हिंदू संसद, उसमें सारे किस्म के 50 अलग अलग जगहों से, प्रांत से हिंदूज आएंगे, वो अपने विचार देंगे। और बाहर के भी हिंदूज होंगे, जैसे नेपाल के हिंदूज होंगे या यूरोप के होंगे, सब एक प्यार मोहब्बत से हिंदुइज्म की जो गरीब हिंदू हैं उनकी सेवा करें,
सब कुछ उनको मिले और एक किस्म का एक फंड भी बन जाए जो इमरजेंसी फंड हो, इसी फंड से हमारी पूछताछ भी होगी। लेकिन हिंदू आजकल जो बिखरे हुए हैं, इसका फायदा काफ़ी लोग उठाते हैं, क्योंकि आप वोट तो दोगे लेकिन आपकी पॉलिटिशियन नहीं सुनेगा, उनको पता ही अकेले हैं, इनका कोई है नहीं। इसीलिए आपके एग्जाम्पल आपके सामने हैं, कश्मीर में या केरला में जो हो रहा है, बंगाल में हो रहा है, क्यों नहीं पूछपाई हो रही? बोलती वोट तो मिल जा रहे हैं उनको, बोलते ये वोट हमको ही देंगे, लेकिन हमारा स्ट्रेंथ नहीं है, कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो उनको पूछे, उनसे सवाल करे कि आप हिंदुओं की क्यों नहीं सेवा करते हैं। बिकॉज हम भी कश्मीर में थे, वहाँ पे इंडियन आर्मी भी थी, पुलिस भी थी, तब भी हमको निकाला गया। तो ये जो हिंदुओं के दिमाग में है कि हमारी आर्मी या कोई पुलिस कुछ कर पाएगी, दैट इज नॉट राइट, बिकॉज हमारे आगे एग्जाम्पल्स हैं, हमको निकाला गया है। तो हमको सीखना चाहिए, आज वो दिन आ गया है कि हम सब हिंदुओं को सीखना चाहिए अपना ईगो बाहर रख के पैशन से, कंपैशन से और टीम प्लेयर बिल्डिंग एबिलिटी से हिंदुइज्म को ज्वाइन करना चाहिए। जय हिंद।